Good morning, students of the BSc second year classes. I will start. Today's topic is related to the physiology of the urine formation. In other words, we can say that this is the related to the function of the kidney, the numbers of the procedure which are done by the nephrons of the kidney. That is the three major processes which are solved by in today's topic. I was discussed about to the excretion process, in which the excretion, the kidney, structure of the kidney and their units. Unit is the nephrons. Nephrons is the structural and functional unit of the kidney, so that on the basis of the structure of the nephrons, we was seen and discussed about to the different parts of the nephrons, just like to the Malpighian bodies or renal capsules or Malpighian capsules, in which these are the divided into the Bowman's capsule and the glomerulus. Glomerulus is the tuft of the arterioles, which are surrounded by the two layers, parietal and visceral of the Bowman's capsule actually, and after that we are followed by to the PCT, proximal convoluted tubule. PCT is the convolution, that is a type of the convolution, is called to the PCT. Then we form to the U-shaped structure is called to the Henle's loop. There are the three kinds of the constitution of the cells in the U-shaped structure of the Henle's loop. That is the ascending, descending. But here the thin, thick and structure, thin cells and to the thick cells are the thin tissues are the thick tissues, so that to the on the basis of these their organization is called to the descending limbs of the Henle's loop, ascending limbs of the Henle's loop. After goes into the another convolution part is called to the distal part, because these are the forming to the distal convoluted tubule. This part is very important for that to the reabsorption process and to the and he is followed by the collecting tubule and collecting duct. Collecting duct is also called to the duct of Bellini, because the millions of the nephrons which are constituted together in one kidney, so that to the each of the nephrons which are associated to that region, which region is called to the duct of Bellini, and after that to the these are leads into the cup-like extension is called to the calyces, major and minor and the major. Then pelvis and goes to the urine in the through the ureter through the urinary bladder, and after that to the urethra of the body. So that this is the scenario of the last topics I was discussed into the previous lecture. Today's topic is related to the previous topic, because only I was discussed in the previous lecture to the only structure of the nephrons, the particular parts, and to their functioning glomerulus ultrafiltration, reabsorption and tubular secretion. But into the here today's topic is in the detail and the broad sense, which can say that to the urine formation or the particular things is to the physiology of the urine formation, how is the process which are going on and to the make the urine and this is which are have to the numbers of the inorganic and organic constitution and other substances along with the water. So today's topic we will discuss about to the
in the detail what is the pressure, what is the diffusion, what is the solutions, how many types of the solutions and their work, what is the osmotic pressure, and on the basis of the osmotic pressure or the particularly which can say the diffusion, on the basis of the diffusion, that is the ultrafiltration processes and reabsorption processes that takes place into the nephrons. This is the very important, this is the very essential, because they are the ultrafiltration takes place for that to the purification of the blood, and that's after the filtrate that goes to the each part of the nephrons, and that's nephrons which reabsorb all the substances into the different ratios, PCT, venous loop and DCT, after that collecting tubule, and finally which are formed to the urine. So that this is the so many kinds of the substances, and these are the substances which are come from to the blood in the glomeruli, and the glomeruli which filtrated to the these kinds of substances which are filtrated to the blood, and the blood which are goes to the once again in through the renal veins and in the heart, and that's heart to the once again to the going into circulation, and here to the after the filtration that is goes to the reabsorption patient, how the reabsorption, how the tubular secretion, and to the very important to the glomerular filtration which takes place. So that we just try to understand about to the what is the scenario, what is the situation, and to the what is the procedure is will be proceeds, and to the these are the blood plasma which are filtrated, and to the all the substances which are goes from to the in the filtration mechanism. So that first of all just is go now to the urine formation, the uriniferous tubules of the kidney which form to the urine formation, and the uriniferous tubule of the kidney forms the urine from the circulating blood in the glomerulus. In the glomerulus, from the circulating blood, because all the substances, all the mechanisms, all the nutrient material, waste material, all the things which where are the differentiating from to the blood, so that to the through the blood which are we are mentioned there the circulating blood in the glomerulus. In the parts of the glomerulus, that is the blood is the present, and that's the kidney uriniferous tubules of the kidney which participate which went to the ultrafiltration, reabsorption and tubular secretion, and then form to the urine. So that thus the formation of the urine by the kidney is considered to be due to their types of the activities of the nephrons. So in the previous lecture and to the today's lecture, we will discuss about into the in the broad sense, in the detail, what is the main function and to the procedures which are done by to the nephrons, and to the which are in the by the nephrons. That is so due to the presence of the some of the activities and different activities just in the form of the glomerular filtration or ultrafiltration, selective reabsorption and tubular secretion. This is the processes, and these are the processes which are done into the glomeruli, Bowman's capsule, Malpighian bodies which are constituted to the Bowman's capsule, and Bowman's capsule is lined by to the glomeruli. Glomeruli is the tuft where are the ultrafiltration processes which are takes place, and that due to the presence of to the osmotic pressure and the pressure gradient. So the formation of the urine by the kidney is considered to be due to the there are the types of the activities. So that तो आज के चैप्टर में जो कि किडनी से ही जुड़ा, किडनी के फंक्शन पर्टिकुलरली हम नेफ्रॉन्स के फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो नेफ्रॉन्स होता है वो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जो है वर्क करता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन मैकेनिज्म करता है, रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस करता है, ट्यूबुलर सेक्रेशन करता है. मतलब आफ्टर ऑल हम
इवेंचुअली ये कह सकते हैं कि जो वो यूरिन का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इसको एक दूसरा नाम भी दिया गया है, फिजियोलॉजी ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन। मतलब जो मेन वर्क है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो कि बॉडी से पास आउट होने हैं, वो यूरिन के रूप में वहाँ से निकलते हैं, तो जिसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, जैसा मैंने बार बार मेंशन किया है। तो उन्हीं चीज़ों को आज को हम इन डिटेल में पढ़ेंगे, उसके प्रेशर को जानेंगे, उसमें फ्लूइड्स को जानेंगे और ऑस्मोटिक प्रेशर को जानेंगे। तो सबसे पहले हम डिफ्यूज़न को जानते हैं, क्योंकि जितने भी प्रोसेसेस आगे हम ये बताएंगे आपको, उसके तीनों जो मैकेनिज्म है, तो चाहे वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो या फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन हो, सब प्रोसेसेस में इवेंटली हमने हमेशा कहा है कि जो भी प्रोसेसेस आपको पढ़ना है या फिर बॉडी पार्ट्स में जाएंगे, एक क्रॉस होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, वहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेसेस होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड के साथ में जितने भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं, जो भी किसी भी फॉर्म में हो, वो जब आएंगे तो वो ग्लोमेरुलस में कैसे जाएंगे, हाउ इज द मैकेनिज्म विच आर टेक्स प्लेस for that to the blood filtration or the ultrafiltration mechanism, for that to the purification of the blood, or the particularly we can say that about to the blood which are goes to the from the filtrate। तो यहाँ से कैसे फिल्ट्रेट होगा, कौन सा मैकेनिज्म यहाँ अडॉप्ट होगा, उसको हम करेंगे, क्योंकि ब्लड के साथ में सारी चीज़ें हो रहती हैं, तो कैसे वो वहाँ पे फिल्ट्रेट होगा, छन्ने का कैसे। तो इसके लिए वहाँ पे, क्योंकि जो किडनी है, जो उसकी नेफ्रॉन्स है, वो भी एक सेल से बनी है, तो उसमें भी उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो वर्क होता है वो हमेशा सेलेक्टिव नेचर होता है, सेमी परमेबल होता है, परमेबिलिटी को शो करता है। तो अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए उसकी अलग अलग परमेबिलिटी होती है, जो कि उसके डिफ्यूजन प्रोसेस पे निर्भर करती है, डिफ्यूजन मैकेनिज्म पे निर्भर करती है। तो इसलिए हमको आप पहले डिफ्यूजन प्रोसेस डिटेल में समझना है, उसके बाद हम उसके टोन्स को पढ़ेंगे और फिर इस प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो मैंने हमेशा आपको बताया है कि डिफ्यूजन एक बहुत ही इसेंशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन, या फिर यूं कहें कि अगर वो ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया हो रही है, सेल टू सेल या फिर सेल से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स में जा रही है, तो वहाँ पर जब तक सेल अंटिल the plasma membrane which are not allowed, they are the process which are not going on, तब तक वो प्रोसेस नहीं हो सकेगा। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, तो डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। तो डिफ्यूजन हमेशा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो डिफ्यूजन पहले समझते हैं, डिफ्यूजन मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर किडनी के लिए। यहाँ पे जितने भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो, चाहे रीअब्जॉर्प्शन हो, ट्यूबुलर सिक्रीशन हो, तीनों प्रोसेसेस के लिए यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस, या बेसिकली कहें तो ऑस्मोटिक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट टू द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी, फंक्शनिंग ऑफ द नेफ्रॉन्स, formation of the urine, and the reabsorption and ultrafiltration. That is the type of the diffusion is takes place, and also important, so that we will discuss now to the what is the diffusion, what about to the diffusion, what do you think about to the diffusion, diffusion से आप क्या समझते हैं, diffusion क्या होता है। तो diffusion के लिए हमने हमेशा एक आपको समझाते हैं यहाँ पे कि diffusion mechanism क्या है। डिफ्यूजन को समझने के पहले आप क्या है, डिफ्यूज होना। अब यहाँ पे वो चाहे वो आयंस फॉर्म में हो, एटम्स फॉर्म में हो, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो, या फिर किसी सॉल्यूशंस के फॉर्म में हो, सॉल्वेंट हो, किसी भी फॉर्म में कोई भी हो, तो वो क्या होगा, वो डिफ्यूज होना चाहिए। सेल के अंदर वो डिफ्यूज होगा, और वो डिफ्यूज वहीं से होगा जहाँ से उसका कंसंट्रेशन, उसकी मात्रा, उसका सांद्रता अधिक होगा। ये डिफ्यूजन की थियरी है। उस रीजन से जहाँ पर उसकी मात्रा अधिक होगी, वो हमेशा उस रीजन में जाने का प्रयास करेगा जहाँ पे वो उसकी मात्रा कम होगी, तो वहाँ से वो डिस्पर्स करेगा, वहाँ से वो मूव करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, और वहाँ पे जाने का प्रयास करेगा, तब तक जब तक कि वो पूरी तरीके से वहाँ पे फैल ना जाए। इसका ये मतलब हुआ कि वो तब तक जाएगा जब तक कि दोनों इक्विवेलेंट नहीं हो जाएंगे, मतलब दोनों रीजन में उस आयंस की, उस एटम की, उस मॉलिक्यूल की, उस सॉल्यूशंस की, उस सॉल्वेंट की मात्रा इक्विवेलेंट ना हो जाए।
आइसोटोनिक ना हो जाए, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर बंद हो जाएगा, तब जाके वहां पे डिफ्यूजन प्रोसेस बंद होगा। तो इस प्रोसेस को, तो डिफ्यूजन में क्या होगा कि हम किसी आयंस की बात करें, हम एक एग्जांपल के रूप में एक सेल लेते हैं, तो एक सेल को किसी हम फ्लूइड में, सॉल्यूशंस में या किसी भी में डुबोएंगे तो वहां पे, तो पहले हम डिफ्यूजन को समझ लेते हैं। मैंने क्या बात किया, मैंने कहा कि या तो वो आयंस फॉर्म में हो, मॉलिक्यूल्स हो, या फिर सॉल्वेंट हो, या फिर उसका सॉल्यूशन हो, तो किसी भी फॉर्म में होगा। तो उसका टोटल मूवमेंट की बात करते हैं हम, द ग्रैंड टोटल, मतलब the total net movement of the ions, atoms or the molecules or the solvent from a region up to the higher concentration to the region of the lower concentration is called to the process of the diffusion. डिफ्यूजन की प्रक्रिया में पूरा जो आयंस का, एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का या सॉल्वेंट का, सॉल्यूशंस का जो अमाउंट होता है, जो मूवमेंट होता है, टोटल जो मूवमेंट होता है, वो हमेशा हायर रीजन से हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से हमेशा लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन तक जाएगा, मतलब वो हमेशा हायर टू लोअर जाता है। डिफ्यूजन क्या है, व्हाट अबाउट टू द डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच टू द नेट मूवमेंट ऑफ द आयंस मॉलिक्यूल्स आर द सॉल्वेंट आर द सॉल्यूशंस विच आर गोइंग विच a region up to the lower region up to the higher concentration to the region of the lower concentration। ये तो डिफ्यूजन की परिभाषा हुई। डिफ्यूजन दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे क्या बताएंगे हम, एक डिफ्यूजन होता है पैसिव डिफ्यूजन है, पैसिव डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की बात करेंगे, और दूसरा होता है एक्टिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन। तो पैसिव डिफ्यूजन और एक्टिव डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में दो टाइप हुए, और दोनों टाइप का जो निर्धारण है, डिटर्मिनेशन है, वो उसके एनर्जी के कंजप्शन पे निर्भर करता है। यदि जो मोमेंट है वो बिना एनर्जी के खर्च हुए अगर ये प्रोसेस पूरा हो जाता है या होता है तो उसको पैसिव ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं या पैसिव डिफ्यूजन बोला जाता है। लेकिन अगर ये किसी भी इस प्रकार के जितने भी आयंस मॉलिक्यूल्स या जो भी हैं उनका जो ट्रांसपोर्टेशन में अगर मेटाबॉलिक एनर्जी खर्च होती है तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला जाएगा। मतलब आप सामान्यतः जनरली या रिलेटिवली ये कह सकते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट आर द दोज ट्रांसपोर्ट इन विच to the consumption of the metabolic energy for the transportation, for the movement of to the this kinds of to the substances from to the region of higher concentration to the lower concentration। हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने में जो ये सबस्टेंसेस होते हैं, जो ये थिंग्स होते हैं, वो हमेशा क्या डिफ्यूज हो जाते हैं, जहाँ पे बिना एनर्जी के खर्च हुए वो प्रोसेसेस कंप्लीट होते हैं। अब आपको समझना होगा, आप ये सोच रहे होंगे हाउ द प्रोसेस इज गोइंग ऑन, व्हाट विल हैपेंस ड्यूरिंग टू द पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि पैसिव जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो along the concentration gradient के साथ में चलता है। यहाँ पे एक शब्द आया concentration gradient। gradient का मतलब अमाउंट के फ्लक्चुएशन से है, अप एंड डाउन से या फिर मूवमेंट से। जहाँ पर कंसंट्रेशन हायर की बात की जा रही है, कंसंट्रेशन लोअर की बात की जा रही है, तो दो रीजन है, दो अमाउंट में है, तो उस अमाउंट के साथ में वो जो ट्रैवल कर रहा है, तो वो जितने अमाउंट में ट्रैवल कर रहा है वो उसका ग्रेडियंट कहलाता है। तो उस ग्रेडियंट के साथ में, उस कंसंट्रेशन के साथ में वो जो है जो सबस्टेंसेस हैं, वो जो आयंस हैं, जो एटम्स हैं, जो सॉल्यूशंस है या सॉल्वेंट है, वो मूव कर रहा है वो अलोंग विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब जहाँ पे अधिकता है, सांद्रता है, वो वहाँ से वो कम की तरफ जा रहा है, तो वो बहुत आसानी से चला जाता है, वहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस बहुत अच्छे से हो जाता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि उसके अगेंस्ट में जाना हो, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट,
तो हमें ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी। इसका एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल आप सामाजिक परिप्रेक्ष्य में करते हैं, हम लोग भौतिक जीवन में हमेशा यूज करते हैं कि अगर हमको सीढ़ियों से चढ़ना हो तो हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, लेकिन सीढ़ियों से अगर उतरना होगा तो वो एनर्जी बहुत कम हो जाती है। या फिर किसी स्लाइड्स पे अगर हमको चढ़ना हो तो वहाँ पे चढ़ने में बहुत ही मेहनत लगानी पड़ती है, लेकिन अगर उतरना होगा, हमको वहाँ से नीचे आना होगा तो वो बहुत ही कम मेहनत में, या फिर यूँ कहें वहाँ पे मेहनत नहीं लगती। या फिर रिवर में आप देखें कि जो स्ट्रीम्स होती हैं, धाराएं चलती हैं इन द विच गोज टू द bank of the rivers, where are the just seen to the stream of the rivers, and to the when the any substances, any things which are goes along with the stream, that is goes to in the easier, but in the against the stream, that is that have to the that have to the consume to the energy for to the going to the one place to another place। कहने का मतलब था कि स्ट्रीम के अगेंस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, और स्ट्रीम के साथ में जाएंगे तो एनर्जी बहुत नहीं खर्च करनी पड़ती। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा होगा, कम की तरफ जाएगा तो डिस्पर्स करे जाएगी, वो चली जाएगी आराम से, लेकिन उसके अगेंस्ट में कम से और ज़्यादा की तरफ बढ़ेगा तो वहाँ पे प्रेशर देना पड़ेगा, वहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये सारी प्रक्रियाएँ कैसे होती है? डिफ्यूजन प्रेशर से होती है। अगर ऑस्मोटिक की बात करेंगे तो वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर से होती है। मतलब a type of the pressure which are developed during the movement of this kinds of the substances or the molecules or the ions। तो इस समय जबकि मूवमेंट हो रहा है, एक प्रेशर डेवलप होगा कहाँ पर? जहाँ पर एक हायर से लोअर या लोअर से हायर, क्योंकि डिफ्यूजन दोनों टाइम में होता है। बस अंतर ये है कि वहाँ पे एनर्जी का कंजप्शन होगा या फिर एनर्जी का कंजप्शन नहीं होगा। तो ये आपने देखा कि डिफ्यूजन के संबंध में मैंने बताया। तो हमारे बॉडी में दोनों प्रकार के डिफ्यूजन पाए जाते हैं, तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, पैसिव डिफ्यूजन, अनएक्टिव डिफ्यूजन। अब हम बात करें पैसिव डिफ्यूजन की, तो पैसिव डिफ्यूजन में 3 प्रकार के होते हैं: ऑस्मोसिस, सिंपल डिफ्यूजन, अनफैक्टिलेटेड डिफ्यूजन। हम आपको ऑस्मोसिस थोड़ा विस्तार में बताते हैं। सिंपल डिफ्यूजन गैसेस के लिए होता है, वो डायरेक्टली जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें प्रोटीन और लिपिड्स की जो स्पेसेस होते हैं वहाँ से वो डायरेक्टली जो है मूव कर जाती हैं। जबकि जो फैक्टिलेटेड डिफ्यूजन होता है थ्रू द प्राइमरी एनी टाइप ऑफ द प्रोटीन विच आर प्रेजेंट एंड दैट टू द कैरी टू द सबस्टांसेस दैट इन द फॉर्म ऑफ टू द पर्टिकुलरली टू लार्ज मॉलिक्यूल विच कैरिड बाय द these kinds of the permeases and that's to the goes inside। तो कहने का मतलब परमेज के माध्यम से वो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स स्पेशली होते हैं वो वहाँ पे अंदर मूव करते हैं। जबकि ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि हमको यहाँ पे आपके किडनी या फिर जो ये फिल्ट्रेशन होगा वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस डिफ्यूजन जो हमने आपको परिभाषित किया, डिफाइन किया, उसी चीज पे बिहेव करती है। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच टू द मूवमेंट ऑफ टू द solution movement of a solution from to the region of the lower concentration to the region of the higher concentration। अब थोड़ा सा आप कहेंगे कि यहाँ पे तो ये डिफ्यूजन लोअर से हायर की तरफ हो है, अब जबकि आपने बताया हायर टू लोअर, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। हम आपको समझाते हैं यहाँ पे कैसे होगा। हम क्या बात कर रहे हैं? सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। हमें 2-3 महत्वपूर्ण चीजें ध्यान देना है। क्या क्या महत्वपूर्ण चीजों में आप देखेंगे कि हम किस किस चीजों की बात कर रहे हैं, क्या क्या हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देखें, ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं, तो ऑस्मोसिस जो है द टाइप ऑफ द डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एक टाइप ऑफ डिफ्यूजन है। ऑस्मोस होता है, ऑस्मोस का मतलब होता है पुशिंग, पुश करना। जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सॉल्वेंट होते हैं, उसको पुश करते हैं। तो बेसिकली रूप से ये सॉल्यूशन से बिलोंग करता है। सॉल्यूशंस जो है पुशिंग होती है। तो सॉल्यूशन, कोई भी प्रकार का जो सॉल्यूशन होगा वो 2 चीजों में बनता है, एक सॉल्वेंट होगा और दूसरा सोल्यूट होता है। मतलब द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूशन विच हैव टू द सॉल्वेंट एंड द सोल्यूट, so that is the form to the particular type of the solution in which
अब देखें कि सॉल्वेंट और सोल्यूट से सोल्यूशन बन रहा है। ऑस्मोसिस में मैंने बताया कि वो किसी भी सोल्यूशंस का जो मूवमेंट हो रहा है वो लोअर रीजन से जहां पे उसका कंसंट्रेशन कम है वो हमेशा हायर की चलता है। लेकिन आपको बात क्या ध्यान देना है, दो चीजें ध्यान देना है। यहाँ पे दो चीजें हैं, सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ, सोल्यूट की बात कर रहा हूँ। अगर किस विशेषकर जो सॉल्यूशंस बनते हैं वो क्या है, उसमें सॉल्वेंट होता है और बेसिकली रूप से सॉल्वेंट ज्यादातर वाटर होता है। वाटर के परिप्रेक्ष्य में प्रोस्पेक्टिव फॉर द वाटर के रेफरेंस में इसके अलावा भी होते हैं, ऐसा नहीं है केवल हम वाटर को बोल सकते हैं, लेकिन हम एज एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं क्योंकि ज्यादातर इस्तेमाल यूज इसी के लिए किया जाता है। वाटर क्या सॉल्वेंट, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट और सोल्यूट मिलकर सोल्यूशन बना है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो किस प्रकार का, व्हाट इज द टाइप ऑफ द सोल्यूशन, वेयर आर विच टाइप ऑफ द कंसंट्रेशन, किस प्रकार का कंसंट्रेशन है उसके पास, और उसमें जो दो पर्टिकुलर सॉल्वेंट एंड सोल्यूट है उनका किसका कंसंट्रेशन यहां पे ज्यादा होगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, I say that about to सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। अब सोल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होते हैं, एक डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। आपने केमिस्ट्री के रेफरेंस में भी पढ़ा होगा। तो कंसंट्रेटेड जो सोल्यूशन होता है उसमें क्या होगा, अब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा तो किसकी मात्रा ज्यादा होगी। तो कंसंट्रेटेड आपको बता दें, जब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की बात होती है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की बात होती है तो वहां पर उसमें उस सोल्यूशंस में सोल्यूट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो यहां पे देखने की बात है, सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं हम। तो सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा जैसा कि सॉल्यूशंस को आपको समझाना है हमें, तो क्या कर रहे हैं कि रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, किसमें, सॉल्यूशंस में। तो सॉल्यूशंस में दो चीजें हैं, हमने ध्यान दीजिए, एक सोल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। अब हमको ये देखना है कि ये इसमें किसकी मात्रा ज्यादा होगी, जबकि मैंने आपको पहले ही इंडिकेट कर दिया कि जो सॉल्वेंट होते हैं वो वाटर है, और वाटर मतलब जो जैसे ग्लूकोज का घोल बनाइए या फिर नमक का घोल बना लीजिए आप वाटर के साथ में, तो उस प्रकार का। तो मैंने कहा कि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा, तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा तो उसमें किसकी मात्रा ज्यादा होगी। तो कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशंस होते हैं वहां पे वो जो कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे मैंने कहा, अगर अब ये कह रहा है लोअर रीजन, कंसंट्रेशन ऑफ द लोअर रीजन टू द हायर रीजन, लोअर टू द हायर, तो लोअर रीजन की बात कर रहे हैं, लोअर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, है ना, लोअर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो लोअर कंसंट्रेशन में यही क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, सोल्यूट होगा। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट होगा, एक प्रकार का सोल्यूशन बना। अब ये क्या कर रहा है, लोअर रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन है। तो लोअर कंसंट्रेशन है तो इसका मतलब ये है कि यहां पर सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होगी और सोल्यूट की मात्रा कम होगी। सोल्यूट जो होगा वो कम होगा, मतलब ये हायर होगा अमाउंट में, ये लेस अमाउंट में होगा। ठीक है, ये हायर, ये लेस अमाउंट। तो सॉल्वेंट की मात्रा यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी, सोल्यूट की मात्रा जब कम हो जाएगी। कब, जबकि ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। बार बार याद रखना है, जस्ट रिमेंबर दैट द मोमेंट ऑफ द solution and those are the solutions which are higher to the higher concentration in the solution, higher concentration of the solvent in comparison to the solute, that is will go to the higher solutions. ये क्या है, ये रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन, ये लोअर कंसंट्रेशन है। और जब लोअर कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशंस होते हैं उसमें सॉल्वेंट हमेशा अधिक मात्रा में होते हैं। लेकिन अगर हायर कंसंट्रेशन हो जाए, रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, उसमें सोल्यूट की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल के तौर पे हम समझाएं, अगर ये यहां से मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट में तो क्या कह रहे हैं हम कि लोअर सॉल्वेंट, ये क्या है, लोअर है।
एक रीजन है ये यहाँ और एक रीजन ये है, और इस रीजन से मैंने बताया कि ये मूवमेंट होने जा रहा है, तो ये क्या है सोल्यूशन, लोअर सोल्यूशन, मतलब रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन, ये लोअर कंसंट्रेशन है। तो लोअर कंसंट्रेशन मैंने बताया किसका, सॉल्यूशंस का, और सॉल्यूशंस में सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों होते हैं, तो यहाँ पे किसका मात्रा ज्यादा होगा या कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का, मतलब वाटर का। और ये तो मैंने डिफ्यूजन का क्या बताया, डिफ्यूजन इज ऑलवेज गो टू द हायर टू लोअर। तो हमेशा जब ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है, ऑस्मोसिस बिलोंग टू द वाटर, मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, सो दैट इन द सॉल्यूशन द solvent which are present, and to the when the we said that to the lower concentration of the solution in the always to greater amount of higher amount of the solvent, and if the concentrated solutions, that is the solute amount of the solute is greater than amount of the solute is ग्रेटर देन द सॉल्वेंट। तो यहां पर कहने का मतलब था कि ये लोअर होगा तो वहां पे सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होगी सॉल्यूशंस में, तो ये क्या हो जाएगा, हायर हो गया, हायर से क्या जा रहा है, लोअर। यहां पे अभी ये जिस प्रकार का यहां पे सॉल्यूशंस होगा, यहां पे सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी और क्या होगी, सॉल्वेंट की मात्रा कम होगी। तो यहाँ पे ग्रेटर से ये क्या जा रहा है, मतलब हायर से ही लोअर जा रहा है। तो हमारा क्या है, ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस हमें सॉल्वेंट से बिलोंग करता है, सॉल्वेंट के लिए रिप्रेजेंट होता है, इसलिए हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ये पूरी तरीके से डिफ्यूजन प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, तो आप देखें ये तो ऑस्मोसिस हो गया। ऑस्मोसिस दो प्रकार का होता है, एक्सॉस्मोसिस, एंडॉस्मोसिस। वो कैसे होगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा क्या, एक थ्योरी टोन्स जानना पड़ेगा। टोनिक मतलब मैंने कहा आइसोटोनिक, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक क्या है, अब जैसे मैंने कहा कि ये ऑस्मोसिस की प्रक्रिया तभी होती है जब एक प्रेशर डेवलप होगा। तो जो विच ऑफ द प्रेशर इज डेवलप ड्यूरिंग टू द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल, सो दैट टू द ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज द ऑस्मोटिक, ओपी, उसको ओपी बोलते हैं, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। थ्रू द ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज द वाटर मॉलिक्यूल विच आर गो नाउ टू द हायर टू लोअर। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, those solutions where are there are no movement of the water molecules at all, and after that to the both of the solutions, both of the fluids is equalized, मतलब कि जबकि दोनों solutions जो है, ये एक सेल है, सेल का solutions, और ये जो सेल है जिस सॉल्यूशंस में रखी गई है, तो एक सॉल्यूशन ये हो गया, दूसरा सॉल्यूशन ये हो गया जो सेल का सॉल्यूशंस है। सेल का फ्लूइड है वो अपने आप में एक सॉल्यूशंस होता है, और ये जिसमें प्लेस ऑन किया गया है, दैट इज द प्लेस ऑन इनटू द एनी काइंड्स ऑफ द सॉल्यूशंस, सो दैट इन द आइसोटोनिक सॉल्यूशंस देयर आर द नो मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल बिकॉज दीज आर द हैव टू द equal osmotic pressure, which can say that in the another words the water molecule which are goes until जबकि यहाँ पर जब तक ये वाटर मॉलिक्यूल तब तक यहाँ पे अंदर जो है मूवमेंट करता है, जब तक कि ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर नहीं हो जाता। और जैसे ही दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं होगा, वाटर मॉलिक्यूल अंदर नहीं जाएगा। तो इस प्रकार के सॉल्यूशंस को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन जबकि हम दो सॉल्यूशंस को देखेंगे, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में, उसमें देखें, उसकी बात करें हम तो कैसे देखेंगे, उस प्रकार से हम समझें। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में ये एक सॉल्यूशंस है और इस सॉल्यूशंस में एक सेल को रखा गया है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है इसका और ये सेल है। अब देखें उसी प्रकार से दोनों पर ये एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये आउटर फ्लूइड है, मतलब ये क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक।
हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, किसका, बाहर वाला। इसमें इस प्रकार के सोल्यूशन में प्लेस ऑन किया गया है, दैट इज द प्लेसिंग टू द सेल्स इनटू द हाइपरटोनिक सोल्यूशन, so that to the how the possibilities occur to the movement of the water which of the sides is goes to, मतलब किस तरफ वो, किस साइड में वो मूवमेंट करेगा, यहाँ पे देखने वाली बात होगी। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या है, ये मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। अभी हमने आपको बताया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में किसकी मात्रा ज्यादा होती है, जब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा वहां पे सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी, सॉल्यूट की मात्रा अधिक होगी, सॉल्वेंट की कम होती है। और तो अब यहाँ पे ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, एरिया भी कम है, तो इस प्रकार के जो सेल का सॉल्यूशन है, सेल का जो फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म है या फिर जो है फ्लूइड है, ये इसका जो सॉल्यूशन हो, इसका जो कंसंट्रेशन होगा इसकी कंपैरिजन में कम होगा। तो जब कम होगा तो जाहिर सी बात है लोअर, हमने अभी आपको बताया कि लोअर जो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस होते हैं वहां पे सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है। किसकी मात्रा ज्यादा होती है, सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है। तो सॉल्वेंट की जब मात्रा ज्यादा होती है तो आप कह सकते हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस ऑन करने पे किस प्रकार का मूवमेंट होगा। तो मैंने हमेशा ऑस्मोसिस के लिए क्या बताया कि ऑस्मोसिस वहां से मूव करता, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट बिलोंग करेगा, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, वाटर क्या करता है, वो लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस होते हैं, रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर की तरफ जाएंगे, मतलब इस सॉल्यूशंस की बात करें। लेकिन जब लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस है उसमें सॉल्वेंट की मात्रा अधिक है, तो यहाँ पे ये सॉल्वेंट की मात्रा अधिक है, तो ये क्या कर जाएगा, यहाँ से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका एक्सॉस्मोसिस हो जाएगा। एक्सॉस्मोसिस को फॉलो कर रहा है। और एक्सॉस्मोसिस में क्या होता है, जो सेल से क्या होगा, एक सेल श्रिंक कर जाएगी, प्लाज्मोलाइसिस की प्रक्रिया हो जाएगी, पूरा का पूरा वाटर निकल जाएगा। ठीक है, अब हम अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस की, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो अगर हम किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इस सेल को प्लेस ऑन करते हैं तो आप समझिए रिवर्स प्रोसेस है, एकदम अपोजिट प्रोसेस है। जैसे आप देखें तो ये क्या होगा, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा, अभी तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या था, हायर कंसंट्रेशन था, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन हो जाएगा। मतलब तो लोअर कंसंट्रेशन में क्या होता है, वह सॉल्वेंट की मात्रा अधिक होती है, हायर होती है, और हायर, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो सॉल्वेंट की मात्रा होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आपको पता है कि हमेशा वो कहाँ से जाती है, लोअर से हायर जाती है डिफ्यूजन प्रोसेस के अकॉर्डिंग। तो ये क्या करेगी, यहाँ से इसमें मूव करेगी, तो क्या होगा, एंडोस्मोसिस होगा। तो एंडोस्मोसिस में क्या होगी, वो स्वेल कर जाती है। जैसे सीड का एग्जाम्पल लीजिए, वाटर में डालिए और उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद देखिए वो इम्बाइब कर जाती है, स्वेलअप हो जाती है। तो किस प्रोसेस से, एंडोस्मोसिस से। तो वो इस प्रकार के हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के माध्यम से वो रिसीव करती है। तो कॉन्सेप्ट यही है, आप कंफ्यूज ना होइए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही है कि वो हमेशा हायर टू लोअर जाएगा। आपको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का सॉल्यूशंस है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है या डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है या हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में हमेशा सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है, लोअर कंसंट्रेशन में हमेशा सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हमको केवल सॉल्वेंट से मतलब है, सॉल्वेंट को हम लेते हैं, वाटर को लेते हैं, वो ऑस्मोसिस जो है केवल वाटर का होता है, तो वाटर जो है मूवमेंट कर रहा है। तो इसी प्रोसेस को, तो 3 प्रकार के सॉल्यूशंस के आधार पे आपने ये देखा कि जो किडनी में जो भी प्रोसेसेस होंगे, क्योंकि ये ब्लड क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, ये प्लाज्मा क्या होती है, फ्लूइड होती है, और ब्लड के साथ में जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होंगे, फिल्ट्रेट होंगे, वो क्या होंगे, रीअब्जॉर्ब होंगे, वो क्या होंगे, सिक्रीट होंगे। तो इन सारे प्रोसेसेस को देखते हुए सबसे पहले आपको डिफ्यूजन और आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन समझना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट कंडीशन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जो उसके ग्लोमेरुलाई होते हैं, पीसीटी होता है, डीसीटी होता है, हेनल स्लूप होता है, इन सारी पार्ट्स में यहाँ पर आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस की बार बार बात होगी। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी था, बिहाफ ऑफ द दिस काइंड्स ऑफ द सॉल्यूशंस, दिस काइंड्स ऑफ द कॉन्सेप्ट, पर्टिकुलर वी कैन से दैट टू द concept of the diffusion, definition of the diffusion, you have to just
तो आपको इसके बारे में अबाउट टू द नॉलेज ऑफ द डिफ्यूजन, रिगार्डिंग टू द डिफ्यूजन, ये आपको जानना पड़ेगा। तो अब हम आगे चलते हैं, इसके बिहाफ पे हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? नेफ्रॉन्स है। नेफ्रॉन्स का एक रीजन हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन दिखाया है, क्योंकि हमको क्या दिखाना है? सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जहां से यूरिन फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरुआत होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे आपको पहले हमको दिखा देते हैं क्या प्रक्रिया होती है, कैसे होती है। तो देखिए ये क्या है? ये रीजन है ग्लोमेरुलस का, ये रीजन है, ये आपके माल्पीजियन बॉडीज का आप कह सकते हैं। ये पूरा रीजन माल्पीजियन बॉडीज का हो जाता है। नीचे आपके रीनल ट्यूब्यूल्स हो जाती हैं, जिसमें पीसीटी, हेनस लूप, डीसीटी आते हैं, कलेक्टिंग डक्ट आते हैं। तो इस रीजन अफरेंट इफरेंट एट्रियोल्स है। आप फिर जाके ये टफ्ट बनाएंगी, आपको पता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया। तो वी आर जस्ट मेंशन्ड इनटू द प्रीवियस लेक्चर, दैट इज द afferent and efferent arterioles, and that is the go now into the formation of the tuft, and here the place where the ultrafiltration mechanism is that takes place, जहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म यहाँ पे होगा। तो देखिए कैसे होगा, क्योंकि क्या है? ब्लड। अब क्या हो रहा है? ब्लड से ही फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म होगा। ध्यान दीजिए, जितने भी सबस्टांसेस हो, वो चाहे इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो, मैंने पिछले चैप्टर में मेंशन किया था कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, जितने भी न्यूट्रिएंट मटेरियल होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उसके साथ में वाटर है, एंजाइम है, हार्मोन है, प्रोटीन है, क्या कहते हैं, ग्लूकोज है, या फिर अमीनो एसिड्स है, जितनी भी चीज़ें हैं वो क्रेटिनिन है, क्रेटनाइन है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के सब यहाँ पे ब्लड के साथ में, चूंकि ब्लड क्या है? मीडियम है, ब्लड के हिसाब में सारी चीज़ें जो है ईच ऑफ द पार्ट्स में पहुँचती हैं। तो ब्लड जो है लेके आया है अफरेंट एट्रियोल से। अब क्योंकि क्या है, ये अफरेंट एट्रियोल से ये नैरोवर होगी, और नैरोवर होगी तो आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ से ब्लड के साथ में फिल्ट्रेशन इस प्लेस में होना है, तो फिल्ट्रेशन इस प्लेस में होगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये किस प्रकार का फ्लूइड होगा, ये किस प्रकार का फ्लूइड होगा, मतलब इस प्रकार का सोल्यूशन होगा। ये ब्लड, ये इस रीजन से यहाँ पे जाना है ब्लड को। तो देखिए, तो अब इस रीजन में जाएगा तो किस प्रकार से जाएगा? तो अभी आपने हाइपोटोनिक प्रोसेसेस पढ़ा, तो ये हाइपोटोनिक है, यहाँ पे हाइपरटोनिक है, ये सॉल्यूशंस होते हैं हाइपरटोनिक। अब ये यहाँ से ये अंदर जाएगा, अंदर तब तक जाएगा जब तक कि ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर नहीं हो जाता, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पे ही जो है यहाँ से ये अंदर जाएगा और पूरे के पूरे। तो यहाँ पे अब फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म होगा। कैसे होगा हम आगे बताते हैं आपको। यहाँ पे जाएगा और इसके बाद ये ब्लड अलग हो जाता है, और जितना भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है यहीं पे इसमें यहाँ पे फिल्ट्रेट हो जाता है, छन जाता है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि ग्लूकोज से लेके मिनरल्स, विटामिन, हार्मोन्स, वाटर, सारी चीज़ें यहाँ पे फिल्ट्रेट हो जाती हैं। वो किसके आधार पे? इस सॉल्यूशंस के आधार पे, इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के आधार पे। जब तक कि यहाँ पे, तो जब ये इक्विवेलेंट हो जाएगा तो किस प्रकार का हो जाएगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन को शो करने लगेगा। यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन शो करेगा, और यहाँ पे पहले यहाँ से ब्लड यहाँ पे पूरे सबस्टांस को लेके जाएगा। अब क्या होना है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किसके होगा? ये कैपिलरीज हैं, जहाँ पे ब्लड होना है, छनना है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा, जो मटेरियल, तो ये फ्लूइड है, पूरा ब्लड जो है फ्लूइड के साथ में है, और फ्लूइड जो होगा वो सारे सबस्टांस को कैरी किया है। तो वहाँ से अब आप समझ लीजिए ब्लड एक फ्लूइड है, और फ्लूइड से सारे सबस्टांस को वहाँ पर रीअब्जॉर्ब होना है। तो रीअब्जॉर्ब कैसे होगा? ये देखिए, हाइपोटोनिक सोल्यूशन के माध्यम से। अब देखिए यहाँ से ये रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, और वाटर यहाँ से अलग होके ये आगे चल जाए। लेकिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है, अब देखिए ECF बोला जाता है। ECF को बोलते हैं, जो ECF होता है उसको इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर बोलते हैं। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जो ग्लोमेरुलस रीजन है वहाँ पे लगता है, जबकि मैंने बताया है ये। अब यहाँ पे देखिए, एक तो इफेक्टिव, अब थोड़ा समझ लेते हैं हम। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू GHP माइनस BCOP प्लस CHP। इसका क्या मतलब है? GVHP का मतलब होता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, माइनस BCOP का मतलब होता है
BCP का मतलब होता है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, और CHP का मतलब होता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो अगर हम इसमें से GHP ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में से इनको माइनस कर दें तो हमें EFC मतलब इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर प्राप्त हो जाएगा, और उसी इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर के माध्यम से जो पूरा का पूरा फिल्ट्रेट है यहाँ पे फिल्ट्रेशन में प्रोसेस में फिल्ट्रेट हो जाता है। फिर तो आइए देखते हैं कैसे है। तो अब हम इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर को जानते हैं कैसे है। अब थोड़ा समझिए ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ये पूरा का जो पूरा ग्लोमेरुलस रीजन है यहाँ, तो ग्लोमेरुलस में क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक द प्रेशर विच आर डेवलप थ्रू द, एक प्रेशर डेवलप हो रहा है किस रीजन में, ग्लोमेरुलस रीजन में। तो ग्लोमेरुलस का जो रीजन है, ग्लोमेरुलस का जो पार्ट है पूरा, इसमें एक प्रेशर डेवलप होता है, और वो प्रेशर होता है 75 मिलीमीटर Hg, जो इसकी यूनिट है। इस यूनिट पे इसको स्केलिंग किया गया है, 75 मीटर इसका जो वैल्यू आता है। और वहां पे देखेंगे, अब ध्यान दीजिए, ये मतलब ग्लोमेरुलस अपना प्रेशर लगाएगा इधर से, देखिए एरो मैंने लगाया कहां पे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए, फिल्ट्रेट होने के लिए। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसी समय जो है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्रोटीन्स, मतलब जो ब्लड में जो प्रोटीन्स होंगी उसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे इसके अगेंस्ट में लगता है। तो मतलब ये जो रीजन होगा, इसी रीजन में हम इसको एरो उल्टा दिखाते हैं, इस रीजन में लगेगा, मतलब ये 75 मिलीमीटर Hg को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके अगेंस्ट में जो कोलाइडल प्रेशर है, ये ग्लोमेरुलस का प्रेशर है, और ये इसके अगेंस्ट में कोलाइडल प्रेशर है। कोलाइडल में जो ब्लड है, प्रोटीन्स है, उसका प्रेशर है वो 30 मिलीमीटर Hg होता है। अब इसके आगे अंश में देखें BCOP, तो BCOP का मतलब क्या, अभी आपने बताया ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर अभी आपने देखा, तो यहां पर ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने बताया, ये देखिए ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये आपका GHP हो गया, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कि यहाँ पे ग्लोमेरुलर रीजन में जितने भी फिल्ट्रेशन जो ग्लोमेरुलस लगाता है, क्योंकि ये क्या होती है, फाइन टफ्स होती हैं, ग्रेन्यूल्स होती हैं, एट्रियोल्स होती हैं, यहाँ पे जो है प्रेशर राइज होता है, क्यों, फिल्ट्रेट होने के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि जब वाल्स होती हैं, वाल्स के अगेंस्ट में उधर की जो फ्लूइड होंगी वो भी प्रेशर लगाती हैं, तो जो यहाँ पे फ्लूइड होगी, यहाँ पे जो ब्लड होगी, वहाँ पे जो प्रोटीन्स होगी, उसका भी अपना ऑस्मोटिक प्रेशर लगा हुई है। इसके अलावा अब आप देखिए एक चीज और है, CHP। CHP को क्या बोलते हैं, CHP को बोलते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इस रीजन को बोला जा रहा है, इस रीजन को। तो इस रीजन में दो होते हैं, दो का नाम है, एक को बोलते हैं इंट्रा कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और दूसरा इंटरस्टिशियल प्रेशर। तो इंट्रा और इंटर, ये जो रीजन्स होते हैं, इस रीजन को हम दिखाएंगे। तो इंटर और इंट्रा जो कैप्सुलर रीजन्स हैं, इंट्रा कैप्सुलर और इंटरस्टिशियल जो रीजन्स हैं, ये भी 10 मिलीमीटर Hg और ये भी 10 मिलीमीटर Hg, तो दोनों को मिला देंगे तो हम बोलते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। CHP को जो रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पे CHP, तो CHP को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे 10 to 10 20 मिलीमीटर Hg में। अब देखें इसका मतलब ये है कि, और ये भी इसी अगेंस्ट में प्रेशर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे फिल्ट्रेट होना है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से फिल्ट्रेशन कैसे होगा, फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म कैसे यहाँ पे होगा, for the formation for the filtration mechanism that is the, अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ से ये फिल्ट्रेट होगा, इसके अगेंस्ट में लग तो रहा है, लेकिन अभी हम आपको वैल्यू बताएंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिए ये क्या है, ये अपना प्रेशर कंटेन किया है, ब्लड और जितने भी सभी चीजें हैं वो अपना प्रेशर कंटेन किए हैं, ये अलग अपना प्रेशर कंटेन किया है। तो देखिए EFC इज इक्वल टू GHP माइनस BCOP प्लस CHP। मैंने अभी आपको बताया इफेक्टिव प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ब्लड कोलाइडल प्रेशर एंड कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसकी वैल्यूज देखिए, यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस रीजन है इसका जो वैल्यू है 75 है,
और इसके अगेंस्ट में जो काम कर रहा है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्रोटीन उसका 30 है, और कैप्सुलर जो रीजन है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो जिसमें दो चीजें आती हैं, इंट्रा कैप्सुलर और इंटरस्टेशियल जो रीजन्स हैं, उसमें 10-10 मिलीमीटर एसजी का प्रेशर होता है, इसके अगेंस्ट में लगता है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए 30 + 20 को ऐड कर दिया गया और इसमें से 75 में माइनस कर दिया गया, और 25 मिलीमीटर एसजी जो वैल्यू आई है, इसी वैल्यू के साथ में वहां पे वो फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म हो जाता है, फिल्ट्रेट हमें प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे होगा। तो आप देखिए सॉल्यूशंस अभी हमने दिखाया था, उसी सॉल्यूशंस के माध्यम से क्या हो रहा है, यहाँ से फिल्ट्रेट छनेगा, और छनने का मतलब है कि सेल से छन रहा है। तो अब क्या होगा, सेल से यहाँ से ये फिल्ट्रेट हो रहा है, तो फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म में यहाँ से निकलेगा, तो मतलब ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में आप जानते हैं वो निकल के जा रहा है, तो मतलब जितने भी सोल्यूट्स होते हैं वो निकल के जा रहा है ना, यहाँ से ये निकल रहा है और आगे की तरफ बढ़ जा रहा है, और ये सारे, तो ये एक प्रेशर मैंने बताया ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन थियरी है, जिसके माध्यम से आपने समझा। इसी माध्यम से जो फिल्ट्रेट होते हैं यहाँ पे छन जाते हैं, और ब्लड जो है थ्रू द रेनल वेन से आगे चला, हार्ट में फिर से चला जाता है, और जो अब यहाँ पे फिल्ट्रेट होने के बाद दूसरा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। इन द प्रीवियस लेक्चर जस्ट मेंशन दैट अबाउट टू द ईच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स which are have to the selective in nature because the different kinds of the diffusion processes which are adapted, osmotic pressure, osmotic, simple diffusion, active diffusion, हर प्रकार के डिफ्यूजन को फॉलो करते हुए अलग अलग जो रीजन में मैंने जैसे मेंशन किया था पिछले लेक्चर में कि वो उसको रीअब्जॉर्ब करेगा, जितने भी मटेरियल हैं बॉडी में उसको रिटेन करने के लिए वो उसको क्या करता है उसको वहां पे बना के रखता है कि सेल में उसकी कमी ना होने पाए बॉडी में। तो वो वाटर हो, ग्लूकोज हो, अमीनो एसिड हो, जितने भी मिनरल्स हैं, वो हर चीज को वो मेंटेन करता है। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। तो पीसीटी, डीसीटी, हैनल्स लूप, कलेक्टिंग डक्ट, जितने भी पार्ट्स हैं वहां पे वाटर का, सोडियम क्लोराइड का, सोडियम NaCl का, वाटर का, पोटेशियम का, एंजाइम, हार्मोन, विटामिन, वाटर, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सारी चीजों का रीअब्जॉर्प्शन अलग अलग रेट से और अलग अलग परसेंटेज में हर रीजन में होता हुआ चला जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे हार्मोनल एक्टिविटीज भी परफॉर्म होती है, हार्मोनल एक्टिविटीज होती है, जैसा कि पीसीटी, डीसीटी रीजन में एल्डोस्टेरोन का और जो है वैसोप्रेसिन का, जिसको एंटी डायरेटिक हार्मोन बोलते हैं, उस रीजन में एक से सोडियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन होता है एल्डोस्टेरोन से, और जो आपका दूसरा हार्मोन्स है वैसोप्रेसिन, जो कि न्यूरोहाइपोफाइसिस रीजन से जो पिट्यूटरी ग्लैंड का भाग होता है वहाँ से रिलीज होकर यहाँ पे वाटर को रिटेन करने के लिए, वाटर को मेंटेन की बॉडी में वाटर की कमी ना हो, वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सक्रीशन ना हो, उसको मेंटेन करने के लिए रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे फिर से वो मेंटेनेंस होगा, वहाँ से किया जाएगा। अब लगातार जैसे जैसे रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेसेस बढ़ते जाते हैं उस प्रकार से मटेरियल वहाँ से आगे बढ़ते जाते हैं, वहाँ मात्रा बढ़ती चली जाती है, और बाद में चल के कुछ विभिन्न प्रकार की चीज़ों का ट्यूबुलर सेक्रेशन के माध्यम से सेक्रेशन हो जाता है। और जो लास्ट में रीअब्जॉर्प्शन के माध्यम से बाद में बनता है तो उसमें वाटर, क्रेटिनिन, क्रेटिनाइन, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरोक्रोम, sodium, potassium, calcium, vitamin, hormone, little bit amount of these kinds of substances which are formed to the particular substance which called to the urine, and the urine is passed out through the passages, that is the draining from to the renal regions, that is the calyces, minor, major, pelvis, and then the ureter, which are goes now into the urinary bladder and pass out to the urethra of the body. So that this is the topic of the urine formation, and the next topics will I will start to the new topics, new physiological system, new system, so that today's topic close. Thank you.